Hello everyone, today we will discuss about the Middle English literature. In this video, you will came to know about the Middle English literature, the history of that literature, the famous authors and their famous work. So before discussing the literature of the time, Middle England, or you can say that Middle era, first of all you have to introduce the different aspect of the society in this era, like language, society, church and the history. So first of all we will start from language, कि उस समय की लैंग्वेज कौन सी थी, वहाँ पर कैसे लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी एट द टाइम ऑफ मिडल इंग्लिश. सो after the Norman conquest in 1066, Old English was suppressed in records and official winners in favor of the Norman French language. It means when Norman win the Britain, जब नॉर्मन जो है वो जीत चुके थे 1066 में, देन द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, और यू कैन से दैट द एंग्लो इंग्लिश लैंग्वेज वॉज सप्रेस्ड इन रिकॉर्ड्स, केवल रिकॉर्ड्स में ही वो सप्रेस्ड हो गई थी, और नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज ऑफिशियली इस्तेमाल की जाती थी. नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज मतलब नॉर्मन जो ट्राइब्स थी, नॉर्मन जो लोग थे, वे ब्रिटेन में अटैक करने से पहले दे अटैक्ड फ्रेंच and they adopt French language with them. So they brought their language, which is Norman French language, which was Norman French language. So the Old English language was suppressed in record and officially Norman French language was used. By 14th century, English re-emerged as the dominant language, but in a form very different from Anglo-Saxon Old English. बाय 14th सेंचुरी इंग्लिश रीअमर्स्ड, इंग्लिश दोबारा से एमर्स्ड हुई थी एक डोमिनेंट लैंग्वेज के रूप में, लेकिन ये जो इंग्लिश थी वो ओल्ड इंग्लिश से डिफरेंट थी. सो ये लैंग्वेज थी मिडल इंग्लिश लिटरेचर की. द सेकेंड एस्पेक्ट वाज सोसाइटी. वहाँ की सोसाइटी कैसे थी? इन मिडल एजेस द किंग रिटेनर स्ट्रक्चर ऑफ एंग्लो सैक्सन सोसाइटी इवोल्व्ड इनटू फेडिज्म. मिडल एज में जो सोसाइटी थी वो किंग रिटेनर स्ट्रक्चर था एंग्लो सैक्सन्स के टाइम पे. एंग्लो सैक्सन्स की सोसाइटी के टाइम पे किंग रिटेनर स्ट्रक्चर था. व्हाट वाज किंग रिटेनर स्ट्रक्चर? इट इज़ किंग रिटेनर रिलेशनशिप. इन दिस स्ट्रक्चर और इन दिस रिलेशनशिप a reciprocal relationship which dictate that the Thanes should be loyal to their leader, and in return the leader would protect them and share the treasures obtained in battle. It means who was Thanes? Thanes are the persons who granted the land by the kings. It means Thanes वे लोग होते थे जो कि लीडर्स और किंग से, यू कैन से लीडर और अ किंग, जो कि किंग से जिनको लैंड ग्रांटेड होती थी, and they were loyal to the king, and in reciprocal king protect the Thanes by giving the treasure obtained in battle. It means Thanes जो है वो लॉयल थे किंग्स को लेके, और किंग लॉयल था थेन्स को लेके. किंग अपने ट्रेसेस को जो बैटल से वो मिलता था वो थेन्स को देते थे. तो ये था किंग रिटेनर रिलेशनशिप. बट इन मिडल एजेस दिस किंग रिटेनर स्ट्रक्चर्स इवॉल्व इनटू फेडिज्म. अब ये जो किंग रिटेनर स्ट्रक्चर था वाज डिमिनिश्ड एंड न्यू स्ट्रक्चर फेडिज्म वाज इवॉल्व्ड. And what is the Hindi meaning of feudism is Samantwad, a method of organizing society consisting of three estates. It means society consists three states. First, clergyman. Second, nobility who ruled the society or the land or the resign. The commoners physically labored. So three state: clergyman, nobility or commoners. Medieval society saw the social order as part of the great chain of being. It described the social hierarchy believed to be created by God. It means in Middle Ages
In medieval society, social order, the three structures of the social was considered very important, and it assumed that these structures was created by the god. So these structures gave very important by the king or by the people. So it is all about the society. Next, philosophy. The church dominated life and literature. At that time, church dominated life and literature of Middle Age. In medieval Britain, the church referred to the Roman Catholic Church. Uh, in medieval Britain, the famous church or the church means Roman Catholic Church. At that time, plague known as the Black Death affected both the everyday life. At that time, plague जो है वो आगे आ चुका था, इसके कारण it affected everyday life. The last aspect of medieval society was chivalry. What was chivalry? A second philosophical influence on medieval thought and literature. इस सेकेंड फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस था मेडलीव के थॉट्स पर और मेडलीव के लिटरेचर पर was chivalry, the code of content that bound and defined a knight's behavior. It means it is like a code of content जो कि डिफाइन करता था नाइट के बिहेवियर को. इट मीन्स देयर वाज अ कोड ऑफ कंडक्ट, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द नाइट, एंड नाइट हैव टू फॉलो दैट, विच वाज कॉल्ड चिवलरी. नाउ लिटरेचर. कितने प्रकार के लिटरेचर थे? हाउ मैनी लिटरेचर्स at the time in Middle English, and what were the famous literature at that time? First, devotional books. First book was Books of Hours. It was a collection of prayers. Second, Plasters, book containing plasm and other devotional material. What was plasm? Plasm Bibles की कुछ thoughts होती थी, and other devotional material contained in the plasts. Missals, book containing prayers and other text reading during the celebration of Mass throughout the year. It means the book containing missals containing the prayers and the different text which was read during the celebration of Mass throughout the year. It means throughout पूरी ईयर में जितनी भी टेक्स्ट रीड किए जाते थे पॉपुलर, वे सब कंटेन कहाँ पर थे? कलेक्टेड मिसाइल्स में. सेकेंड, ब्रीवियरीज, बुक कंटेनिंग प्रेयर्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सेलिब्रेटिंग मार्क्स. मतलब इट बुक कंटेन प्रेयर्स एंड इंस्ट्रक्शंस होती थी कि हम किस प्रकार से कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है. अब है हेजियोग्राफिक्स. व्हाट वाज हेजियोग्राफिक? स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ सन्स. हेजियोग्राफिक वाज कंस्ट्रक्टेड एट दैट टाइम. मेडिलिव ड्रामा. मेडिलिव ड्रामा के अंदर क्या क्या है? मिस्ट्री प्लेस. मिस्ट्री प्लेस में क्या होता था? प्लेस डिपिक्टिंग इवेंट्स फ्रॉम द बाइबल. इन दिस प्लेस the events in this place depict the Bible. Morality play plays often allegory. Morality plays होते थे जिनका एक उद्देश्य होता था to teach a moral lesson. Morality plays was the plays which whose aim motive is to teach a moral lesson to the general public. Chivalric literature क्या होता था? A narrative in either prose and poetry. एक नैरेटिव होता था, पोज या पोइट्री में हो सकता था, या तो पोइम्स के रूप में या फिर एसेज या नॉवेल्स के रूप में. प्रेजेंटिंग ए नाइट्स एंड हिज एडवेंचर. एक राजा को प्रेजेंट करता था और उसके जो एडवेंचर्स होते थे उनको वो प्रेजेंट करता था. कैस्टन एंड द प्रिंटिंग प्रेस. मेन इन्वेंशन, फेमस इन्वेंशन एट द टाइम. कैस्टक रिवोल्यूशनलाइज्ड द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर in the English language in 1476 when he set up the first printing press in England. In 1746 he set the first printing press and it revolutionized the literature. Medieval drama. मिडल लिटरेचर में मेडिलिव ड्रामा क्या क्या था? फर्स्ट मिस्ट्री प्ले में जो बाइबल्स की इवेंट होती थी उनको डिपिक्ट किया जाता था. मिस्ट्री प्लेज डिपिक्ट इवेंट्स फ्रॉम द बाइबल. ऑफन मिस्ट्री प्लेज व परफॉर्म्ड एज साइकिल प्लेज. इनको साइकिल प्लेज के रूप में परफॉर्म किया जाता था. आपको पता है साइकिल कैसे होती है? इसी तरीके से ये मिस्ट्री प्ले भी परफॉर्म किए जाते थे. कैसे? ए सीक्वेंस ऑफ प्ले पोर्ट्रेटिंग ऑल द मेजर इवेंट ऑफ द
बाइबल। इट मीन्स 4 मेजर सिटी हुआ करती थी। कौन कौन सी थी? चेस्टर, यॉर्क, कोवेंट्री एंड टाउनिली। इन चारों जगह पर ही बाइबल्स की इवेंट जो है वो हम प्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से एक साइकिल बनी हुई थी और वहीं पर ही मिस्ट्री प्लेस को परफॉर्म किया जाता था। सो दैट इज़ वाई मिस्ट्री प्लेस आल्सो कॉल्ड द साइकिल प्लेस। One famous mystery play was the Second Shepherd's Play. One of the most well-known of the mystery plays is the Second Shepherd's Play, part of the Wakefield Circle. Wakefield Circle मतलब एक Wakefield एक जगह थी, वहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता था। तो दैट्स वाइज द पार्ट ऑफ द Wakefield Circle. The play bands comic action है इसमें, कॉमिक्स हैं थोड़ी, सीरियस सोशल कमेंट्री, religious story of the angelic announcement of Christ's birth to shepherds. It means the in this mystery play, इसके अंदर क्या स्टोरी बताई गई है कि एंजल्स अनाउंस कर रही है क्रिस्ट का जन्म होने वाला है, वो शेफर्ड्स को बता रही है इस प्ले में। ठीक है, तो ये मोस्ट फेमस मिस्ट्री प्ले है। सेकेंड, मोरालिटी प्ले. Morality play are intended to teach a moral lesson. Morality play, as its names depict, morality. तो ये moral lessons को teach करने के लिए ये plays परफॉर्म किए जाते थे. These plays often employ allegory. ये plays जो है वो allegory employ करते थे, allegory इनके अंतर्गत होती थी. The use of what is allegory? The use of character or event in a literary work to represent abstract idea and concept. इसके लिए मतलब होता था कि कोई भी abstract idea है, कोई भी abstract concept है, कोई भी ऐसे idea, कोई भी ऐसा concept जो abstract है या फिर हमें समझ में आसानी से नहीं आता सिंपली, उसको बताने के लिए हम character या किसी एक event का हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं allegory. One famous example of allegory was in the novel Animal Farm, written by George Orwell. George Orwell ने एक नॉवल लिखा था Animal Farm. We see allegory taking place in the famous line. एक famous line है जिसके अंदर हम allegory देख सकते हैं. लाइन क्या थी कि all the animal were equal but there were a few that were more equal than others. कि all animal equal थे लेकिन कुछ ऐसे थे जो ज़्यादा equal थे दूसरों से. In this story, the animal are a symbolic representation of various parts of Russia during the Civil War. इसमें जो एनिमल है वो प्रेजेंट एक सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं एनिमल्स का हम, कि जो रशिया के अलग अलग पार्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए. तो इस तरीके से हम एलर्जी का इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी भी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो है वो कैरेक्टर या इवेंट की सहायता लेते हैं. वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ऑफ एक्सटेंट मोरालिटी प्ले इज़ एवरीमैन. एक एवरीमैन मोरालिटी प्ले है. इसमें क्या है? इन दिस मोरालिटी प्ले गॉड सेंड डेथ टू टेल एवरीमैन दैट हिज टाइम ऑन अर्थ हैज़ कम टू एन एंड. इसके अंतर्गत गॉड जो है वो डेथ को भेजता है ये समझाने के लिए कि उसके समय जो है वो एवरीमैन मतलब सभी मनुष्य का समय जो है वो समाप्त हो चुका है. तो इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट हमें कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है कि हर एक इंसान को मरना होता है. तो इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ही गॉड और डेथ और यू कैन से दैट एवरी मैन का हम इस्तेमाल करते हैं. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड एलर्जी. सेकेंड, सर गाविन एंड द ग्रीन नाइट. ये ऑथर्स थे और उनके कुछ फेमस वर्क हैं. लास्ट 40 ईयर्स ऑफ द मिडल एजेस के लास्ट 40 ईयर्स फ्रॉम 1360 टू 1400 तक प्रोड्यूस 3 ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ मेडली लिटरेचर में 3 ग्रेटेस्ट वर्क जो है वो उस टाइम में हुए थे. और वो 3 ग्रेटेस्ट वर्क क्या हैं? चौसस का कैंटरबरी ट्रेल, मैलोरी का मोटेटी आर्थर एंड सर गाविन एंड द ग्रीन नाइट बाय द पीरियल पोइट. सॉरी, ये जो है एक वर्क है. सो एक 3 मेजर वर्क हैं जो कि मेडली लिटरेचर में हुए थे एट द टाइम बिटवीन 1360 टू 1400. 3 वर्क है: कैंटरबरी टेल, मोटे डी आर्थर एंड सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट. अब है एलिटरेटिव रिवाइवल. सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट्स इज द पार्ट ऑफ ए मूवमेंट नोन एज एलिटरेटिव रिवाइवल. गवाइन and Green Knights were the author and they were the part of a movement known as the alliterative revival. अभी alliterative revival है क्या? Alliterative revival is a term adopted by academics
The alliterative revival is a term adopted by academics to refer to the resurgence of poetry using the alliterative verse form in Middle English between 1315 and 1500. It means alliterative revival एक मूवमेंट था जिसके अंतर्गत alliterative वर्स का जो इस्तेमाल किया जाता था ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में उसी को ही जो है वो रिसर्जेंस किया गया है, उसी को ही दोबारा से शुरू किया गया है। मतलब कि हमने पढ़ा था कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में 4 प्रकार के लिटरेरी टेक्निक्स होते हैं। इसमें से एक है एलिट्रेशन में क्या होता था कि अब सबसे पहले हम जानेंगे कि लिटरेरी टेक्निक्स थे क्या। वो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि लिटरेरी टेक्निक्स थे कि ओल्ड इंग्लिश जब थी, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में रिटन फॉर्म कम थी, केवल ओरली ही स्टोरीज़ को या फिर किसी भी टेक्स्ट को रीड आउट किया जाता था। तो उन टेक्स्ट को, उन स्टोरीज़ को लर्न करने के लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया था। 4 टेक्निक्स थे जिनमें से एक टेक्निक है एलिट्रेशन में क्या होता था कि मेटाफर्स की जगह हम जो कोई भी एक लाइन है उस लाइन का जो फर्स्ट वर्ड होता है, इनिशियल साउंड जो होती है वो सेम होती है, जिससे हम क्या होता है कि किसी भी पोइम्स को हम ईजिली याद कर लेते हैं, तो वो होती है एलिट्रेशन। तो वही चीज़ जो कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में थी वही अब मिडल इंग्लिश में उस चीज़ का दोबारा से शुरू हुई थी वो चीज़, इसलिए इसको एलिट्रेटिव रिवाइवल कहा गया था। एलिट्रेटिव वर्स वाज अ ट्रेडिशनल वर्स फॉर्म ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की ये ट्रेडिशनल वर्स थी। द लास्ट लोन एलिट्रेटिव पोएम पीरियड टू द रिवाइवल वाज लेमन्स ब्रड विच डेट्स फ्रॉम अराउंड 1190। कि जो लास्ट एलिट्रेटिव पोएम थी, एलिट्रेटिव रिवाइवल आने से पहले जो लास्ट एलिट्रेटिव पोएम थी वो लायामन्स की ब्रड थी, जो कि 1190 में लिखी गई थी। तो यह था एलिट्रेटिव रिवाइवल। एंड सर गावाइन एंड द ग्रीन नाइट्स इज द पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। Sir Gawain and the Green Knights illustrate two concepts important to medieval novelty। मतलब कि सर गाविन एंड ग्रीन नाइट्स जो हैं वो मेडलिव नोबलिटी यानी जो राजा हुआ करते थे, राजा के 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में वो बात करते थे, शिवलरी के बारे में और कॉटली लव के बारे में। शिवलरी क्या होता था, एज वी हैव डिस्कस्ड द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट विच बाउंड एंड डिफाइंड ए नाइट्स बिहेवियर। कि एक कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होता था, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती थी जिसमें हमें किसी भी राजा के बिहेवियर्स को डिफाइन किया जाता था। शिवलरी में कॉटली लव होता था कि केवल जो है वो राजा ही राजा शादी कर सकते थे, राजा रानी से शादी कर सकते थे, या फिर हम सोसाइटी जो हमारी क्लास होती थी उसी में हम शादियाँ कर सकते थे, उससे नीचे हम नहीं कर सकते थे, उसे हम कॉटली लव कहते थे। रूल गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ नाइट्स एंड लेडीज़ इन द रिचुअलाइज्ड फॉर्मलाइज्ड सिस्टम ऑफ फ्लर्टेशन यानी कि जो हम फ्लर्ट करते हैं या फिर जो शादियाँ होती हैं वो केवल जो है रॉयल फैमिली में ही हो सकती है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट जो हैं वो सर गाविन एंड ग्रीन नाइट्स ने डिस्कस किए हैं। द फेमस ऑथर ऑफ द मिडल इंग्लिश लिटरेचर वाज जोसेफ चौसर एंड द बर्थ डेट ऑफ जोफ्री चौसर वाज 1340 to 1400। ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट ऑफ मिडल एज का ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट है। He has been the father of English literature and father of English poetry. He was known as the father of English literature or the father of English poetry as he wrote many poems. First writers to be buried are called Poets Corner in the Westminster Abbey. Westminster Abbey जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर केवल पोइट्स को ही डेथ के बाद दफनाया जाता है। तो फर्स्ट जो राइटर थे जो कि वहाँ पर सबसे पहले बरीड हुए थे वे थे Joseph Chaucer. Gained fame as a philosopher and astronomer, composing the scientific treatise on the astrolabe for his 10-year-old son Louis. It means he was a philosopher and an astronomer. He famous as a philosopher and astronomer and wrote an astronomy scientific work, a treatise on the astrolabe. He wrote this work for his 10-year-old son Louis. 10-year-old son Louis के लिए वर्क उन्होंने लिखा था। Chaucer other work are The Book of the Duchess, The House of Fame, The Legend of Good Woman, Troilus and Cressida. Born in 1340, several previous generations had been merchant in Ipswich. Father name was John Chaucer. The career of Chaucer was the first of the Chaucer's life records appear in 1357 in the household account of Elizabeth de Burgh.
the Countess of Ulster. She married to Leonie, Duke of Clarence, the second surviving son of the King Edward III. Chaucer was remain here for the rest of his life. It means बहुत ही कम जानकारी हमको चौसर के बारे में मिलती है, लेकिन जो चौसर के लाइफ रिकॉर्ड्स की हमें सबसे पहली जानकारी जो है वो 1357 में एलिजाबेथ डी बर्ग के घर से मिली है, क्योंकि यह इनके घर पर रही थी। और ये एलिजाबेथ डी बर्ग क्या है, ये है काउंटेस ऑफ अल्स्टर है, और उन्होंने एलिजाबेथ ने शादी करी थी लियोनी के साथ, जो कि लियोनल कौन थे, डक ऑफ क्लैरेंस हैं, क्लैरेंस से। और ये कौन थे, लियोनल द सेकंड सर्वाइविंग सन थे किंग एडवर्ड थर्ड के। तो ये कुछ समय तक यहाँ पर रहे थे, एलिजाबेथ डी बर्ग और लियोनल के साथ रहे थे, और यहीं पर ही कुछ घर से इनके इनिशियल लाइफ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लिटरेरी वर्क ऑफ चौसर वाज फर्स्ट वर्क एलिनीडा एंड आर्टाइक। यह एक इनकम्प्लीट पोयम है, एंड दिस पोयम टेल्स द स्टोरी ऑफ एनिलिडा, क्वीन ऑफ अर्मीनिया की रानी है एलिनेटिका, उसकी स्टोरी है। एंड हर वोइंग बाय फॉल्स आर्टिक है, और इसकी जो शादी होती है वो गलती से आर्टिक से हो जाती है, लेकिन ये इनकम्प्लीट पोयम है, एज चौसर डिडंट कंप्लीट इट। द सेकेंड वर्क वाज द हाउस ऑफ फेम। हाउस ऑफ फेम एक वर्क है, इट वाज ओवर 2005 लाइन 2005 लाइन्स लॉन्ग ये वर्क है, 3 बुक्स में ये वर्क है। एंड इट टेक द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम विजन, यानी कि इसमें ड्रीम से रिलेटेड बताया गया है, ड्रीम विजन से रिलेटेड ये वर्क है। पार्लियामेंट ऑफ फॉयलेस एक वर्क है, रेफरेंस टू द आइडिया दैट वैलेंटाइंस डे इज़ स्पेशल डे फॉर लवर्स। इसके अंदर बताया गया है कि वैलेंटाइन डे स्पेशल डे है लवर्स के लिए। द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन एक वर्क है, थर्ड लॉन्गेस्ट पोयम ऑफ चौसर आफ्टर कैंटरबरी एंड ट्रोलस एंड क्रीसाइडल, यानी कि कैंटरबरी ट्रेल फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट पोयम वाज कैंटरबरी ट्रोयस क्रीसाइडरी, एंड द थर्ड पोयम लॉन्गेस्ट पोयम द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ट्रोलस एंड क्रीसाइडरी ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द लवर, बोथ आर lovers and the story is based on their love. He also translated Boethius' Consolation of Philosophy and Roman of the Rose. इसने ये 2 वर्क हैं, Boethius Consolation of Philosophy and the Romance of the Rose, इसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था। इट रिचाइज ऑन द एस्ट्रोफल, जो कि उसने अपने 10 साल के बेटे के ऊपर लिखा था, एक साइंटिफिक वर्क है। डिस्क्राइब फॉर्म एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन पोयम, इसमें बताया गया है कि पोएम्स के अंदर हमें फॉर्म्स और इंस्ट्रूमेंट्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। द एक्वाटोरियन ऑफ प्लांटिस एक साइंटिफिक वर्क है। उसके बाद ये कुछ पोएम्स हैं और कुछ बुक्स हैं जिन्होंने चौसर ने लिखी है। पोएम्स है ट्रोइलस एंड क्राइसेंडरी, द नन्स प्रीस्ट टेल, द बुक ऑफ डचेस, पार्लियामेंट ऑफ फॉयलस, द हाउस ऑफ फेम, द लीजेंड ऑफ गुड, Annelida and Arctic, the tale of Melibea, dream of vision. These all were poems written by Chaucer. And the book Journal Prologue, the life of Bath's tale, the Pardoner, the Milner's tale, the Prior's tales, the Merchants, the Farrier tale, the Persian tale, the Monk tale, the Reeve tale, the Franklin tale, the Riverside Chaucer, the Clerk tale, the Complete tale, the Man of Law's tale, the Knight's Note, the Square tale, the Shipman, the Manciple, the Physician, Sir Thopas, the Quick tale, the Canon's Yeoman and the Summer. इन सब के बारे में, इनकी स्टोरीज़ क्या है, इनकी समरी क्या है, कब पब्लिश्ड हुई थी, इन सब के बारे में हम एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे। द सेकेंड मोस्ट फेमस ऑथर ऑफ मिडल लिटरेचर वाज जूलियन ऑफ नॉर्वेज। Birth date 1342 to 1416. Little is known of the woman before she became an एंक्रोसिस। एंक्रोसिस यानी कि सन्यासी बन गई थी बाद में, लेकिन इसके जीवन के बारे में बहुत ही कम जानकारी हमें मिलती है। शी रोट 2 वर्जन ऑफ शोइंग ऑफ लव। शोइंग ऑफ लव के इन्होंने 2 वर्जन लिखे हैं। शोइंग ऑफ लव क्या है, आल्सो नोन एज रेलिवेशन ऑफ डिवाइन लव। आल्सो हर वर्क बियर वेरियस टाइटल्स। इसका जो इनके जो वर्क हैं उनके अलग अलग टाइटल्स थे, जैसे जूलियन चूज द वर्ड शोइंग, ए वर्ड विजन यूजुअली ऑफ अ रिलीजियस नेचर। मतलब बहुत सारे टाइटल्स
सोचे थे उन्होंने इस वर्ग के लिए, लेकिन उन्होंने शोइंग का ही इस्तेमाल किया। इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द विजन शी हैड डिज़ायरिंग अ सीरियस इलनेस ड्यूरिंग अ सीरियस इलनेस। इसमें एक ऐसी विजन के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है इस वर्क के अंतर्गत, जो कि उस जब वह बहुत ज़्यादा सीरियसली इल हो गई थी, उस समय जो उसके विजन्स आए थे, उन विजन्स को डिस्क्राइब किया है इसमें।